Hello everyone, I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. How are you guys doing? I am good. I hope you guys are all good as well. Okay, so did you see my last session? Okay, I just taught the background of chapter 1, which is Cold War Era, book 1. I'll be starting with another 3 topics today. We'll discuss Cuban Missile Crisis, one is Cold War and the other is Logic of Deterrence. They are important for your exams, you must see them. Okay, starting with Cuban Missile Crisis. Guys, I hope that you have seen my previous video where I talked about the background of World War I as well as World War II. I told you that World War II ended with Hiroshima, Nagasaki bomb that was dropped by USA. Okay, tell me the month dropped by USA. The month was August, 6th August 1945, and after 3 days in Nagasaki, the other bomb was dropped on 9th of August. Okay, it's not so necessary for you to just learn the dates, but you should know the year and the month, which was August of 1945. In 1945, World War II ended, right? After 1945, people feared that there is going to be another World War III, right? So with this World War III, between which two superpowers we have talked about in the previous video, which was USA and USSR. So there's going to be another World War. बहुत ही ज़्यादा डर था इस बात का कि वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली होगी. एंड वर्ल्ड वॉर 3 का पीरियड पता है क्या बोल रहे थे? पीरियड था 1947-48 to 1991. Clear? So they feared that there is going to be another war, and this Cuban Missile Crisis is a hotspot of one of those, Cold War. I'll tell you why it was called Cold War, although I discussed a bit of it in my previous video, if you want to go and check it. Okay, so I'm going to talk about Cuban Missile Crisis. Guys, you got to pay attention and I'll just tell you the gist of it so it becomes clear for you and the concepts get very, very clear, right? Okay, moving on, I'm going to tell you what happened. See, this is USA. Guys, please pardon my bad drawing. This is Cuba. This is USA. This is Cuba. And यहाँ से बहुत दूर जाकर यहाँ पर था Russia. Miles apart was Russia. Let's not call this Russia, guys. This was USSR. It is Russia now. Let's call this USSR. So I'll tell you what happened. Basically, in USA, see, you guys all know that USA was a liberal country. Liberal, also capitalistic. Liberal, capitalistic, free economy. There was no restriction on earning. Although the gap between the poor and the richer was wide, but USA allowed all its people to earn as much as they can, and there was no compulsion that everything belonged to the state. They could do anything that they wanted to do in order to earn private earnings, right? Whereas USSR was communist. I have discussed this in my previous video and you have read this also in class 11th in detail about it. I am still telling you the difference between the two. Communist means, communist country was one that you earn as much as you want, but all the savings and the earnings of the people would be redistributed equally. So there was no gap between the poor and the rich. That was the strategy. USA was headed by John. The president was John Kennedy, John F. Kennedy. You should know the name. Cuba was headed by Fidel Castro.
These are all given in your NCRTs, if by any chance they give you one word. And communist, this USSR was led by Nikita Khrushchev. He was the head of USSR then. Guys, do check the right spelling in any case if I go wrong. And okay, moving on. So Cuba was again communist. So we are talking about Cuban Missile Crisis. What actually happened? Okay, so we are talking about Cuban Missile Crisis. Let me tell you. See, USSR, wide away, far away, was in a fear that Cuba is going to be, spoiled, destructed by USA. Because USA was a liberal and capitalist country, it feared that since Cuba was very, very near to USA, that Cuba would be destroyed, destructed by USA. It was just a fear in USSR's mind. There was no hint that was given by USA to Cuba or USSR, nothing. But what happened was, this USSR had in mind that US is going to come over and destroy everything in Cuba. Cuba will be no more. But Cuba was communist country and so was USSR. So what USSR did was, it just employed a lot of missiles. यहाँ पे बहुत सारी missiles खड़ी कर दी उसने कि यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि USA इसको destroy नहीं कर सके. तो इसने यहाँ पे अपना military base setup कर दिया missiles. After 3 weeks or 21 days, you know what happened? After 21 days, what happened was, USA just got to know that there were missiles at Cuba. In Cuba, what it did, he said, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर एक interceptor रखो. There has to be an interceptor here. So interceptor यहाँ पे रखने के बाद, intercept means something that stops you from going, because to your surprise, पता ही अभी भी missiles वहाँ पे deploy हो रही थी, अभी भी missiles यहाँ पे carry on हो रही थी. but USA ने बिल्कुल order कर दिया कि कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ आ नहीं जानी चाहिए, because USA तो near by था, तो ये USA को attack कर सकते थे, right? Moving on, I'll tell you, guys, do you know what was the end to this? इसका solution क्या निकला? इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि लड़ाई करने का फ़ायदा क्या है, मतलब कि लड़ाई करने से क्या होगा, ये तो वीक नहीं है, ये भी वीक नहीं है, ये इसके लोगों को मारेगा, ये आगे से और लोगों को मार देगा, इसके यहाँ के लोग भी मर जाएंगे, यहाँ के भी लोग भी मर जाएंगे, विनर तो कोई भी नहीं होएगा ना, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो इन्होंने पता है क्या सोचा कि यार लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस टू एन एंड, लेट्स नॉट फाइट एनी मोर, और ना सेटल एक पीस वो ले आते हैं कि नहीं यार लड़ना नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. दे बोथ फियर्ड ईच अदर कि वहाँ के लोग मरेंगे तो यहाँ के लोग भी मर जाएंगे. दिस वाज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डेटरेंस. Deterrence means that something stopped you, something discouraged you to perform some action, right? This was called logic of deterrence. This is quite important. Deterrence means a fear, something, an activity, something that discourages you from performing something, performing an act. Okay, moving on, I would tell you, guys, it's time I show you the real map also. See, this is the real map. If you see, Russia is here, US is here. See, somewhere can you see Cuba? See, Cuba is here. Can you see? Cuba was here and Russia was far away. It was this far. This is the world map that we're talking about, right? Let's talk about USA and USSR. In what context, I'll tell you. 1945, right? USA dropped 2 bombs in Japan. उससे पहले जापान ने भी पर्ल हार्बर पोर्ट में अटैक किया था यूएसए के, तभी यूएसए फाइट में आया था. आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन. और यूएसए ने क्या किया? यूएसए ड्रॉप 2 बॉम्ब्स इन 1945, अगस्त 6, 3 दिन बाद अगस्त 9. ये थ्योरीज ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूड हो गई हैं इन
NCERT if you see, और वहाँ पे बोला गया है कि ना ये USSR को बहुत डराना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, अगर मतलब मैं जापान जब तक सरेंडर नहीं कर रहा है, मैं जापान के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा हूँ, एक और बॉम्ब फेंक दिया, तो कहते वो दिखाना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था USSR को। बट आई गेस दिस वॉज इन वेन, इससे कुछ हुआ नहीं, बस ये हुआ कि वहाँ के जो दो, आई टेल यू एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सी हिरोशिमा में 6 अगस्त को बॉम्ब गिरा, ठीक है, बहुत लोग मर गए, बहुत जाने गई, 2 लाख लोग बच गए। यूएसए ने बोला मैं अपने 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ लड़ने के लिए भेजूंगा जापान में, जिस जापान ने सरेंडर नहीं किया था हिरोशिमा के बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद। तो क्या हुआ, अगर मैं अपने 1 to 1.5 लाख लोग भेजूंगा लड़ाई के लिए, जिससे कि 2 लाख लोग उनके मारूं, तो मैं क्यों भेजूं? इससे बड़ा तो मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ से सब लोग मर जाए वहाँ पे। यही हुआ, उसने अपना बॉम्ब एक और ड्रॉप किया नागासाकी में 9 अगस्त को, और वहाँ पे सब खत्म हो गया था। दिस कैन यू नेम दोज वन, दिस मार्क द एंड ऑफ 1945 World War II, but can you name those 2 coded bombs that I told you in my previous session? Little Boy, Hiroshima, Nagasaki was Fat Man. These were the bombs that were coded, right? This is important because it's given in your NCERT. Moving on, I'll tell you. देखो मैंने कल बताया था कि नाम की 5 कंट्रीज़ थी जो यूएसए को नहीं फेवर करती थी, यूएसएसआर को भी फेवर नहीं करती थी। मैं आज नाम के बारे में तो बात नहीं करने वाली हूँ, नाम की बात मैं अगले सेशन में करूँगी। बट नाम की कंट्रीज़, पहले तो मुझे नाम की कंट्रीज़ बताओ। इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड द लास्ट यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया तो अब डिसइंटीग्रेट हो गई है, बट पहले वो एक कंट्री थी, ठीक है। ये 5 कंट्रीज ना किसी को भी फेवर नहीं करती थी, बट यूएसए और यूएसएसआर के पता है बहुत सारे फ्रेंड्स थे। मालूम, इनके जो फ्रेंड्स थे ना, ये इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे। एक तो यूएसए का फ्रेंड था, एक तो इसका फ्रेंड था फ्रांस, वन वाज ब्रिटेन। इफ यू गाइस रिमेंबर आई टोल्ड यू एलाइड पावर्स में ये चारों थे, बट यूएसए एंड यूएसएसआर तो सुपर पावर्स बन गई थी। इनकी तो अपना अलग ही कुछ होने लग गया था कि मैं सुप्रीम हूँ। तो फ्रांस और ब्रिटेन वो फ्रेंड्स ऑफ यूएसए। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, पाकिस्तान, वॉज अ फ्रेंड ऑफ यूएसए। अच्छा एक बात बताओ कि इनका फ्रेंड बन के मिलता क्या था? पता है क्या मिलता था? प्रोटेक्शन। जब इतनी बड़ी कंट्री तुम्हारा फ्रेंड है तो इतनी बड़ी कंट्री तुम्हें प्रोटेक्ट तो करेगी ना। फॉर इंस्टेंस आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर दे तो इसको कौन हेल्प करने आने वाला है? इसको यूएसए हेल्प करेगा, बिकॉज यूएसए पाकिस्तान का फ्रेंड है। ओके, सो वन वाज प्रोटेक्शन, द अदर वाज मिलिट्री इक्विपमेंट्स। These points are all given in your NCERT, guys, but it's very important you understand these. You make a link to what happened before, then how did USA react. So it's very important you understand these. It becomes easier for you to just frame the answer also. You don't have to mug up everything. One was military equipment. They had lots and lots of military equipments. They could buy from them, right? The other was, guys, they also got economic help. By economic help they mean अगर किसी कंट्री को, फॉर इंस्टेंस ब्रिटेन के पास आज खाना नहीं है, क्या फूड अवेलेबल नहीं है, खाना फूड एक ही होता है, फूड अवेलेबल नहीं है, क्लोथ्स अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी क्राइसिस में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वो डेफिसिट में चल रहा है, तो यूएसए कैन हेल्प। नो, दैट वाज द रीज़न कि ये लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आई वांट टू आस्क यू दैट यूएसए, देखो ये कंट्रीज़ का हेल्प करने के लिए तैयार था, प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार था, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने के लिए तैयार था, उनको पैसे से भी हेल्प करने के लिए तैयार था, सुपर पावर था ना। अच्छा अब ये बताओ कि ऐसा यूएसए को क्या मिलता था इससे?
देखो ये इनको तो बहुत बेनिफिट्स थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होए, कोई कंट्री इनके ऊपर फाइट करने जाए एकदम से तो यूएसए इज देयर टू हेल्प देम। बट यूएसए को क्या मिलता था? कभी सोचा है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज, ये नॉट सो पावरफुल कंट्रीज, मतलब थोड़ी वीक भी नहीं बट बहुत पावरफुल तो नहीं थी ना, तो इन कंट्रीज को क्या मिल क्या रहा है इज अ क्वेश्चन मार्क। यूएसए को क्या मिल रहा है? इन कंट्रीज को तो बहुत कुछ मिल रहा है, यूएसए को क्या मिल रहा है? या फॉर इंस्टेंस अगर यूएसएसआर के फ्रेंड्स है, अगर देखा जाए तो ईस्ट जर्मनी भाई यूएसएसआर का फ्रेंड है, मिल क्या रहा है यूएसएसआर को? यूएसए को क्या मिल रहा है इनकी हेल्प करके, छोटी छोटी कंट्रीज की हेल्प करके? मैं बताती हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज, वन आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, यूएसए और यूएसएसआर पहली बार अगर कहीं लड़ाई कर रहे हैं ना, तो वो उस कंट्री में जाके अपना मिलिट्री बेस नहीं सेट करते थे, वो ना किसी और कंट्री में जाके अपना मिलिट्री बेस सेट कर देते थे और वहां से वार करते थे। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक तो लोकेशन मिलती थी उन्हें। भाई एक बात सुनो ना, जब ये इसको हेल्प करने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान ये नहीं कहेगा ठीक है तुम्हें अगर मेरी लोकेशन कुछ दिन के लिए चाहिए, तुम्हें अपना मिलिट्री बेस सेटअप करना है कुछ दिन के लिए, तो तुम मेरी ज़मीन ले सकते हो, एज सिंपल। वाइस वर्सा हो रहा था, तो लोकेशन मिल जाती थी। सेकंड, वाइटल रिसोर्सेज। अच्छा, वाइटल रिसोर्सेज कौन से हुए? ऑयल, एनर्जी मिलती थी यार ऑयल से, स्टील, आयरन। एक बात पता है, जो ये ऑयल, अच्छा स्टील और आयरन का क्या करना है? आयरन से क्या होगा? रेलवे लाइंस डालेंगे और क्या होगा? फिर थर्ड से एक और चीज थी, वो स्पाई। इफ दे वांट टू स्पाई एनी कंट्री या किसी चीज को वो स्पाई करना चाहते हैं उस कंट्री में रह के, दे कैन डू दैट इजिली। वो कंट्री को विजिट करके वो कर सकते हैं, ठीक है, स्पाई कर सकते थे। एक बात ये है, और एक इकोनॉमिक गेन्स। एक बात सुनो ना, अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर सेल कर भी रहा है यूएस से किसी कंट्री को, पैसे तो उसे वापस में मिलेंगे ना, तो इकोनॉमिक गेन्स भी उसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, बोथ फॉर यूएसएसआर एंड यूएसए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ बल्गेरिया का फ्रेंड था, बहुत फ्रेंड्स थे इसके भी। लेट मी नेम सम अदर कंट्रीज ऑल्सो फॉर यू। नॉर्वे इसका फ्रेंड था, यूएसए का। वेस्ट जर्मनी इसका फ्रेंड था। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। ईस्ट जर्मनी, बल्गेरिया। मूविंग ऑन टू यूएसएसआर, इसका एक फ्रेंड था चेकोस्लोवाकिया। अब तो स्लोवाकिया एक अदर कंट्री हो चुकी है और एक चेको अदर कंट्री है। अब तो ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, दो हो गए हैं, ठीक है। वन वाज हंगरी। हंगरी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। एंड द लास्ट बीइंग रोमानिया। ये इनके फ्रेंड्स थे, दोनों सपोर्ट था इन लोग को। गाइज, वन वेरी मोस्ट important thing I would say, see, can you see this map? It's on page number 5, this map. These red countries, you see, USSR, Warsaw Pact, I'll come to that, Czechoslovakia, Romania, Hungary, we just talked about Hungary की capital Budapest is here, Bulgaria I talked about, East Germany देखो इसका friend था, बताया था ना, याद आ रहा है? भूल तो नहीं गए हो? पिछली स्लाइड में जाके देख लो वीडियो बैक करके, ठीक है। ब्रिटेन इसका फ्रेंड था, देखो आयरलैंड, सारी देखो जो ये कंट्रीज है ना ब्लैक वाली, ये यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, और जो येलो कंट्रीज थी ना ये यूएसए को सपोर्ट करती थी। ओके, फ्रांस बताया था ना, फ्रांस इसका फ्रेंड था। वेस्ट जर्मनी फ्रेंड था, देखो देख पा रहे हो ना? ये एक बार अपना बुक पेज नंबर 5 पे चेक करो, मैंने ये सब क्लियर कर दिया। देखो नॉर्वे फ्रेंड था, नॉर्वे की कैपिटल इज ऑस्लो इज हियर। So I just wanted to tell about this only. अच्छा, I'll just sum up. I'm not going to read these for you. Guys, I'll sum up my session. I'm not going to read these to you, but you can just have a look at what I've taught. If you go through these, I'll share with you the PDF.
इफ़ यू गो थ्रू दीज लाइन्स यू विल सी कि जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है ना, वो सब इसमें लिखा हुआ है. इफ़ यू हैव इट इन माइंड, guys, I forgot a very very important thing. Cuban missile, sorry, my bad. You need to remember this. Cuban Missile Crisis, I'm writing in short, missile crisis that we talked about is year April 1961. Don't forget this. This was just one of the hotspot of World War, Cold World War. Cold World War मैंने बताया ना आपको 1947-48 से लेकर कब तक चला था, 91. Cold War cold इसलिए थी क्योंकि war हुआ ही नहीं था. Logic of deterrence मैंने क्या बताया था. चलो ठीक है, ये देखो ना तुम लोग, तुम्हें समझ आ जाएगा. 1961 अप्रैल हो, ठीक है, आ गया ये. राइट. द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत, पता है. अच्छा ठीक है, अप्रैल 1961 मैंने बताया अभी, ठीक है. लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर वर वरिड दैट यूएस वुड इन्वेड. सिर्फ वरिड थे, कोई एविडेंस था ही नहीं. कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा ऑन ओवरथ्रू फिडल कैस्ट्रो अपन पढ़े थे. द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस. यूएस यहाँ था, नीचे ही क्यूबा था, ठीक है. मैप दिखाया था, रियल मैप भी दिखाया था, और मेरी बैड ड्राइंग में भी दिखाया था. और क्यूबा वाज एन एलाई इज अ, लास्ट वीडियो बताया, एलाई इज अ फ्रेंड. सोवियत यूनियन का फ्रेंड था क्यूबा एंड रिसीव डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड भी मिलती थी उसको. इन 1962 ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स. उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स मैंने बना के दिखाए थे ना, ऐसे एरो एरो, वो देखो, उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय किए थे वहाँ पे. इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम and the close range and nearly this doubled the number of bases or cities. Guys, this is all there in your NCERT. There's nothing new, and if you really want me to share this PDF, I'll share with you. What happened was, बताया था ना अभी कि न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में करे थे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस हैपेंड. इसके बाद क्या हुआ, 3 weeks I told you, 21 days के बाद सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा, और अमेरिकन्स को पता लगा 21 days के बाद. जॉन एफ कैनेडी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी ना. वर्ल्ड वॉर 3 बोलते थे उसको, तभी वो बात हो रही थी कि कोल्ड वॉर एरा इसलिए बना क्योंकि वॉर हुई नहीं बिटवीन द 2 countries, बट दे वर डिटर्मिन्ड टू गेट क्रूशेव. निकिता क्रूशेव इज, बताओ, यूएसए का है? नहीं, क्यूबा का भी नहीं है, ये रशिया का हेड था उस टाइम पे. टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा. उसको एकदम ऑर्डर किया कि हटाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, वॉर कराई जाएगा. कैनेडा ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मीन्स, द लाइन आई ड्रू, इंटरसेप्ट मीन्स रोक दो. इंटरसेप्ट मीन्स हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, मतलब रोकना किसी चीज को. Heading to Cuba is a way of warming the USSR. The clash seemed imminent. Imminent means about to happen. और इससे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसको बोला गया था, ठीक है. फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली जो रशिया था, रशिया ने, मतलब यूएसएसआर था, रशिया तो अब हुआ है, और उसने वापस लेना शुरू कर दिया था अपनी मिसाइल्स, जस्ट टू एनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी. और इंडिया क्या बिलीव करती थी? इंडिया तो एक ही चीज़ में बिलीव करती थी कि स्ट्रेंथ एंड यूनिटी. The Cuban Missile Crisis was the high point of what came to be known as Cold War. Like I told you, it was the hot spot. The Cold War referred to the competition, the tension, and a series of confrontations. Confrontation होने लग गई थी उनके बीच में, क्योंकि ऐसा क्यों किया है? Backed by their respective allies के बारे में हम लोग ने बात किया है ना अभी. मैंने बताया था ना कि कौन किसका ally है. अच्छा, बल्गेरिया किसका ally है? बल्गेरिया यूएसएसआर का है. नॉर्वे किसका है? यूएसए का है. वेस्ट जर्मनी किसका है? यूएसए का है. यू शुड नो दीज. इफ यू लुक एट द मैप क्लोजली तो पता लग जाएगा कि इधर वाली कंट्रीज जो येलो पार्ट है वो सारा यूएसए का है, रेड पार्ट सारा रशिया यूएसएसआर का है, ठीक है. फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर कभी हुआ ही नहीं, फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू. अच्छा, सिंस वॉर हुई नहीं, इट नेवर हैपेंड. व्हाट हैपेंड वाज they were all these allies of the superpowers which is USA and USSR. they feared कि ग्लोबल वॉर एक और हो सकती है. सबने सोचा था यार कि वर्ल्ड वॉर 3 तो अब होएगी. मूविंग ऑन, आई वुड टेल यू व्हाट हैपेंड वाज, कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज. आई टोल्ड यू, मिलिट्री, मनी, इन सब से नहीं था. टेक्नोलॉजी ठीक है, दोनों एडवांस थे. इनके डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था इनकी सोच में, इनके आइडियोलॉजीज में.
आई टोल्ड यू आइडियोलॉजीज इनकी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, पहले भी तुम लोग को पता है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, पहले भी बात कर चुकी हूँ, क्लास 11th में तुम लोग पढ़ चुके हो आइडियोलॉजीज के बारे में, ठीक है. सो दीज आर अकम्पनीड बाय रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट. इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ में बहुत फ़र्क था, ठीक है. अब क्या हुआ, वेस्टर्न अलायंस, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल अपने अपकमिंग चैप्टर, ठीक है. अब जो वेस्टर्न अलायंस था, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल थोड़े दिन बाद, थोड़े नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स. और इनकी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, वी आर रीडिंग दिस द 4th टाइम. अब तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए यार, तुम लोग अब तो पता है, यू कैन गाइस ऑल्सो फ्रेम दीज आंसर्स. अब यू नो देयर इज नो नीड ऑफ यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स ना. अब तो ये कर सकते हो कि यार आराम से यू कैन राइट दीज, अब तो तुम्हें याद हो चुका है. एंड सोवियत यूनियन विच वॉज कमिटेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बात कर चुके हैं हम लोग इस बारे में, इसके बारे में और टाइम खराब करने वाली बात है. द एंड ऑफ, अच्छा ठीक है, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, सियाटो पता है क्या होता है, बताऊंगी वैसे बट अभी बताना चाहती हूँ, बता सकती हूँ ना, अभी बताना चाहती हूँ तो ठीक है, मैं तो बताऊंगी, सुन लो. साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ सियाटो, ठीक है. डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, अब एलाइड फोर्सेस उसकी जो थी, अच्छा एलाइड फोर्सेस कौन कौन थी, कल नहीं मतलब उस सेशन में अपन बात किए थे फर्स्ट वाले सेशन में कि एलाइड कौन थी, फूबू, अच्छा ठीक है, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, ठीक है. और वो कौन थी, जीआईजे, एक्सेस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, राइट, ठीक है. आर वी गाइज ऑन द सेम वेवलेंथ, एम आई फास्ट गाइज, टेल मी. अच्छा ओके, तो ठीक है. 1939, 1945 इस बारे में बात कर चुके हैं ना, ठीक है. वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स, सब मेजर पावर्स को इन्वॉल्व करा था, ठीक है. साउथ ईस्ट एशिया में कौन थी, चाइना, बर्मा, अब म्यांमार हो चुका है वो, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में कौन है, 7 सिस्टर्स, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, देयर आर मोस्टली 8, सिक्किम भी है, तो ठीक है 8 कंट्रीज हैं ये. चलो ठीक है, पता होना चाहिए कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में 8 कंट्रीज है. एक बार चेक करना है, आइदर इट्स 7 or 8, यू जस्ट गाइज गो एंड चेक वंस, आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस, ठीक है. मूविंग ऑन, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ये बताया था ना, ठीक है. सेकेंड कोल्ड वॉर, अच्छा कोल्ड वॉर के ईयर्स बताओ मुझे, 1947 to 48 to 1991. 1991 के बाद क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, पोस्ट लिबरलाइजेशन बोलते हैं उसे. 1991 के बाद सोवियत यूनियन 14+1 कंट्रीज में, 1 कंट्री कौन सी हुई, रशिया हुई, ठीक है. चलो लेट्स बी लिटिल फास्ट. द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स. एटॉमिक बॉम्ब्स की बात हम बहुत बार कर चुके हैं गाइज, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तुम लोग को याद हो जाना चाहिए. क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन, देखो बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि जापान के ऊपर ये फेंकना नहीं चाहिए था. जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था 1-2 दिन में, बट उसने बॉम्ब फेंक दिया, ठीक है. अब उसने कहा कि मैंने बताया तुम लोग को अभी कि इतने लोगों को क्यों मारूं अपने, उसने एक और बॉम्ब दे दिया. पता है क्यों, क्योंकि वो यूएसएसआर को डराना चाहता था, कि इट वॉन्टेड टू फियर, कि एक उसके मन में डर बैठाना चाहता था कि मैं ऐसे लोग तेरे मार सकता हूँ. बट इट डिडंट नो कि यूएसएसआर वाज आल्सो सो पावरफुल. This suggests that US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains. उसे डराना चाहता था, बट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि पता हो इस बारे में. Again the same, US supporters have argued that dropping off was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American allied lives. Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of 2 new powers. ये सब NCERT में दिया हुआ है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी. With the defeat of Germany and Japan, devastation of Europe and many other parts of the world, ability to influence anyone on the, this is nothing. जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको ही elaborated लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है. Well, while the Cold War was an outcome of emergence of US and USSR as 2 supreme powers, they also rooted understanding that destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. अब इनके बीच में वॉर हुई क्यों नहीं, क्योंकि आपस में लोग समझ गए थे. मैंने बताया कि इट्स टू कॉस्टली. वहाँ पे जापान में एक इंसान भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत महंगा पड़ने वाला है. एक बात सुनो ना, इंसान ही नहीं रहेगा तो जिएगा कौन, अगर कंट्री में कोई इंसान नहीं रहेगा तो सब मर जाएंगे यार, कोई
सेंस ही नहीं रहेगी इस बात की. When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, full-fledged war is unlikely. तो ठीक है, वो भी पावरफुल है, वो भी पावरफुल, वो गिरेगा, वो भी गिर देगा, कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा, तो फिर ठीक है, अनलाइकली है, करना ही नहीं चाहिए. प्रोवोकेशन नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क. प्रोवोकेशन मतलब किसी चीज़ को उकसाना, ठीक है, प्रोवोक कर रहे थे कि नो पॉलिटिकल गेन्स वुड जस्टिफाई. इनको डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला है कि अगर तुम एक दूसरे को मारने के लिए वो भी करो. लॉजिक ऑफ डेटरेंस गाइज, आई हैव डिसाइडेड, लॉजिक ऑफ डेटरेंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. You can just go through this once. The event of nuclear war, badly harmed हो जाए, both sides badly harmed हो जाएंगी. तो just deterrence means what? Deterrence means, I told you, deterrence means कि something that's stopping you, something that's discouraging you to do something. तो ये logic of deterrence. मैं इससे बात बताऊँ, एग्जाम में deterrence लिखा ना, नंबर है, इस वर्ड के नंबर है, पता है. deterrence की स्पेलिंग भी याद कर लो, अच्छा लगेगा एग्जाम में लिखा होगे तो. This is called logic of deterrence. Both sides have the capacity to retaliate. तो वो भी अटैक कर सकते हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं, तो कोई भी अटैक मत करो, जान चली जाएगी, क्या हो जाएगा. Thus the Cold War, in spite of being an intense rivalry, remained a cold. I told you, cold is today. हुई नहीं क्योंकि hot और shooting war नहीं बनी वो. ठीक है, deterrence यही था. deterrence is a fear या फिर something that's discouraging you from something. The two superpowers and countries in the rival blocks, superpower, we expected to behave as rational. उन्होंने actually they behaved as rational and responsible, very much responsible. When two superpowers and the blocks are in deterrence relationship, fighting was massively destructive. भाई उसी बात को दोबारा लिखा हुआ है. Responsibility meant being restrained and adding to the risk of another world war in the sense to ensure human survival. भाई ना, इंसान को बचा तो रहना चाहिए ना. अच्छा ठीक है, अब नाम की बात है, नाम की बात हम अगले वीडियो में करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू गाइज एनी मोर फॉर दिस. बहुत बात हो चुकी है आज. NAM हम लोग दोबारा पढ़ेंगे. मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, भी बताया था कि बेलग्रेड में 1961 में हुआ था. जवाहरलाल नेहरू अपने कंट्री से थे, और भी 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और कंट्रीज से. इंडिया का जो इंटरेस्ट था नाम में, क्या इंटरेस्ट था, उसने क्यों ज्वाइन किया था. अपन ये भी पढ़ेंगे कि NIEO क्या होता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इन डिटेल पढ़ेंगे. अपन एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर भी पढ़ेंगे. क्या सिर्फ यही थोड़ी था कि USSR और उसकी लड़ाई थी, बहुत सारी, पता है, बहुत जाने गई थी. आई टेल यू कहाँ हुआ था ये सब. जस्ट फ्यू मोर मिनट्स गाइज, आई एंड अप माई क्लास राइट नाउ. देखो पता है कहाँ हुआ था, कोरिया वॉर. ईयर बताओगे कोरिया वॉर का, बताओ. 1950 to 1953 में. इसके बारे में बहुत बात करने वाली हूँ, पता है, अगली वीडियो में. I hope you guys are liking. I hope you guys are on the same wavelength. You're getting what I'm teaching. देखो, कोरिया वॉर हुआ था, वियतनाम में वॉर हुआ था, कॉन्गो में हुआ. अच्छा, कॉन्गो का है, कॉन्गो अफ्रीका में है. एक DRC भी है, DRC अलग होता है. दिल्ली रेल कॉर्पोरेशन नहीं बोल रही हूँ मैं. DRC इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, वो अलग है. कॉन्गो, वियतनाम और अफगानिस्तान में भी फाइट हुआ था, बर्लिन में भी हुआ था. बहुत जान गई थी लोगों की, बहुत 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 लोग मर गए थे. ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे. एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर वाले टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है. और NAM के बारे में तो हम करेंगे, NIO के बारे में करेंगे. तो यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई वीडियो. I'll come in the next video for more such topics. You have to stay connected. Don't forget to subscribe and hit the like button if you like. Any feedback, any suggestion, constructive feedback, anything and everything is welcome. Just put it in the comment box. Thank you guys. Take care and bye bye.